आज का यूथ मीटिंग में जितने भी लोग मेरे साथ शामिल हैं, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं। God has been good to each and every one of us. परमेश्वर भला है और हमारे जीवन में अभी तक वो भला रहा। The situations have not changed much. We are still confined to our homes, but God is good, leading us in different ways, teaching us different good things. बहुत सारे चीज़ें परमेश्वर ने हमें सिखाया, बहुत सारे अनुभव से हमें लेके जा रहा है। और एक चीज़ आप सब ने अनुभव किया होगा कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, God is good and He is trustworthy and He is giving a taste of His character to each and every one of us. परमेश्वर का स्वभाव क्या है वो हम हर एक हमारे जीवन में अपना अपना परिस्थितियों से हम सीख रहे हैं। So God is taking us through a wonderful journey that we are really enjoying. So let the name of the Lord be glorified. आज का यूथ मीटिंग में हम जाएंगे, we'll have a small time of worship and then we will meditate from the word, so that I wish that the time that we spend together would be a real blessed time for you and for me also. आइए आज का यूथ मीटिंग में हम जाएंगे a time of worship. Lord of all the earth, forget to know my name, forget to feel my hurt. Who am I that the bright and morning star choose to light the way for my ever wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am flower quickly fading, yet today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, we catch you when I'm falling. And He told me who I am. I am yours. I am yours. I am yours. Who am I that the eyes that see my sin look on me with love and watch me rise again? Who am I? The voice that calmed the sea would call out through the rain and calm the storm in me. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling. And He told me who I am. I am yours. I am yours. I am yours. एक बार फिर हम गाएंगे. Who am I that the Lord of all the earth would get to know my name, would get to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch
when I'm falling, and you told me who I am. I am yours, I am yours, I am yours. It's time for us to learn from the Word of God. Let's move forward to learn some things from the book of Exodus. As I told you last week, पिछले हफ्ते हमने Genesis का last chapter हमने देखा था, and now it's time for us to move forward. So I just have entered in the book of Exodus. It's an action-packed book, वो हम सब जानते हैं. And the second chapter took me by surprise as I was seeing the starting phases of a man called Moses. Moses का शुरुआत का वो घटना बहुत सारे चीज़ें वहाँ पे लिखा है सेकेंड चैप्टर में. एंड रियली इंटरेस्टिंग रीड, यू नो, टू रीड द स्टोरीज अगेन एंड अगेन, टू सी हाउ गॉड शेप्स थिंग्स इन द लाइफ ऑफ पीपल. स्पेशली अभी मैं देख रहा था, आई वॉन्ट यू ऑल टू टर्न योर बाइबल्स टू एक्सोडस चैप्टर 2 एंड आई थिंक वील रीड फ्रॉम द सेकेंड वर्स. पहले वो स्टोरी एक बार पढ़ेंगे, फिर उसमें से हम कुछ कुछ चीज़ों को सीखने के लिए कोशिश करेंगे. सेकेंड वर्स, आई विल रीड इन इंग्लिश. द वुमन कंसीव्ड एंड बोर अ सन, एंड व्हेन शी सॉ दैट ही वाज अ फाइन चाइल्ड, शी हिड हिम 3 months. इसका पहले का इंट्रोडक्शन हम सब जानते हैं. फर्स्ट चैप्टर में लिखा है कि द इस्राएलाइट्स वर फ्लरिशिंग, दे वर कमिंग इन बिग नंबर्स. मतलब इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा झुंड हो गया कि the Egyptians were starting to fear them. उन्होंने सोचा इनको रोकना पड़ेगा. So the king gave an order that all the boy child should be thrown into the river. उसका पहले का घटना भी हम सब जानते हैं. पहले वो मिडवाइफ को बोला जब लड़का पैदा होगा उसको मार देना वहीं पे, लड़कियों को जीने दो. But the midwives feared the Lord and they didn't kill the boys. So last, finally, the king told, boy है, आप उनको क्या करना है, उठा के नाइल नदी में आपको फेंकना है. सो दैट वाज द फाइनल ऑर्डर गिवन. बट नाउ एक परिवार में एक बच्चा, एक लड़का पैदा हो रहा है. उसका माँ ने देखा, एंड यू नो इंग्लिश में इट सेज व्हेन शी सॉ दैट ही वाज अ फाइन चाइल्ड, यू नो, बहुत एक सुंदर सा एक लड़का था. तो माँ को बिल्कुल मन नहीं कर रहा था. कौन सा माँ को मन करेगा अपने बेटे को उठा के फेंकने के लिए. बट नाउ दिस लेडी decided that she is going to go against the king's command. तो इस लेडी ने बोला नहीं, मैं नहीं डालूंगी, और 3 महीने उसको छुपा के रखा. And the second verse, when she could hide him no longer, she took for him a basket made of bulrushes and daubed it with bitumen and pitch. She put the child in it and placed it among the reeds by the river bank. उन्होंने वो बच्चे को फाइनली नाइल नदी में डालने का डिसीजन लिया. बट विथ अ डिफरेंस, ऐसे उठा के फेंका नहीं. एक अच्छा सा एक बास्केट बनाया, उसको सील किया, और उसमें उस लड़के को रख के उसको उस नाइल नदी में छोड़ दिया. जब बहुत सारे माएँ वहां पे बच्चों को ऐसे फेंक रहे थे, दिस मदर डिड ए डिफरेंस. इसको अच्छे से संभाल के, वॉट एवर प्रोटेक्शन शी हैड टू मेक, वो सब बना के उन्होंने उनको उस नाइल नदी में डाल दिया. So we see certain people coming into the life of Moses here. इस घटना होते वक्त आप सोच के देखो, when this particular incident was going on, जब एक बेटा पैदा हुआ, किंग का ऑर्डर चल रहा था, and you know one very interesting thing, मोसेस का नाम अभी तक रखा ही नहीं है. You know, I noticed it. 10th verse में मोसेस का नाम डाल रहे हैं. You know, I will read it. When the child grew up, she brought him to Pharaoh's daughter and he became her son. She named him Moses. वो थोड़ा बड़ा होने के बाद ही उसका नाम मोसेस रखा गया है. So जब ये सारे घटना हो रहा है, उसका नाम भी नहीं रखा गया है. A nameless child. But you see how the history is being shaped. एक माँ गवर्नमेंट के खिलाफ जाके वहां पे अपना बेटा को बड़ा कर रही है. You know, she defied the orders of the king and she tried to keep him for 3 months, and when she could not do it, then she protected him in such a way and put him in the Nile river. उसके बाद क्या हुआ वो भी हम जानते हैं. वो मोसेस का बहन वहां दूर से देख रही है, फैरो का बेटी नहाने के लिए आ रही है, and she discovered this baby. तो तुरंत मोसेस का बहन भाग के आके इनसे पूछ रही है, मैं इसको नर्स करने के लिए एक हिब्रू लेडी को लेके आऊं क्या? उन्होंने बोला लेके आओ.
वो भाग के गया, मोसेस का मदर को ही लेके आ गया. यू नो how the things are being shaped beautifully. So I was thinking, when Moses was a helpless child, I see God's hand working around, using people to protect, to shape the life of Moses. आपको समझ में आ रहा है? अब इस समय पे Moses is a helpless child. वो उसका खुद का नाम भी नहीं है. He doesn't have a destiny. He doesn't have anything in front of him. He doesn't have any plans. He's just an ordinary little baby who has just come into this world. But वहाँ पे परमेश्वर दो जनों को यूज कर रहे हैं, उसके मदर और सिस्टर को यूज करके उसको जिंदा रख रहे हैं. For him to be alive, he is going to be a big leader in the coming days. Neither did mother know, neither did sister know. उनको क्या पता है? माँ को पता है ये मेरा बच्चा है, सिस्टर को पता है ये मेरा भाई है, बस. They didn't see that, इसराइल को इजिप्शियंस के हाथ से निकालने वाले लीडर है, इसको हम बचाना है. नहीं, ऐसे नहीं बचाया. बस एक बच्चा है, मेरा बेटा है, मेरा भाई है, इसको मैं बचाना है, बस इतना से सोचा, आगे कुछ नहीं सोचा. बट इन सोच के पीछे से काम करने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर. I was seeing that invincible hand of God, invisible hand of God, which was working through the small ideas of mother and sister to protect Moses. Moses का माँ और बहन इतना ही सोच रख रहे थे कि इसको बचाना है बस, और कुछ नहीं. उनको कुछ भी पता नहीं. बट परमेश्वर क्या सोच रहे हैं? इस्राएली लोगों को बचाने के लिए मोसेस को जिंदा रखना है. जब उसी समय बहुत सारे लड़कों को उठा के उस नदी में फेंका गया है, परमेश्वर को पता है ये एक लड़का है जिसको जिंदा रखना है, क्योंकि आगे जाके इस लड़के ने इस इस्राएलियों को बाहर लेके आएगा. एंड बट फॉर दैट ही वर्कड थ्रू द स्मॉल आइडियाज ऑफ स्मॉल पीपल, हेल्पलेस पीपल. एक माँ, एक सिस्टर. See, this is what I say, our lives, हमें एक्चुअली कुछ दिखता नहीं है, बट उसके पीछे से काम करने वाला परमेश्वर के हाथ बहुत बड़ा है. हम इतना ही सोच सकते हैं, ठीक है यार, एक बच्चा है बेचारे, उसको मदद करना है, हम इतना ही सोच सकते हैं. बट उस मदद के पीछे परमेश्वर का एक बहुत बड़ा योजना है. एंड ही डज इट ब्यूटिफुली द वे ही अलोन कैन डू. ऐसा काम परमेश्वर ही कर सकते हैं. अपने हम जैसे अलग अलग इंसानों का छोटा छोटा विचार में से परमेश्वर का बड़ा योजना निकाल देते हैं. एंड दैट्स व्हाट ही डिड हियर. नाउ आई वाज जस्ट थिंकिंग द अदर साइड ऑफ दिस. आई वाज थिंकिंग अबाउट मोसेस. ये हमने अभी मदर का रोल और सिस्टर का रोल हमने देख लिया. नाउ आई वाज थिंकिंग अबाउट मोसेस. मोसेस एक समय में बहुत बड़ा लीडर बन गया था, बट नाउ ही इज अ हेल्पलेस चाइल्ड. He cannot save himself. He cannot plan how to escape Pharaoh's wrath, how to escape the plans of Pharaoh, and how to keep himself alive. When he was put into the basket, बाइबल में लिखा है, वो जब बास्केट को Pharaoh का बेटी ने खोल के देखा, इसमें लिखा है, he was crying. The baby was crying. That's all he could do. But God was working in his life. When we are helpless, when हम सोचते हैं कि हमारा बस की बात नहीं है, हमें मदद करने के लिए कोई भी नहीं है, तब परमेश्वर का काम हमारे जीवन में काम करते हुए देखेंगे. बट हमारा प्रॉब्लम क्या है मालूम है? As we grow up, as we get acquaintances, as we start getting help from many people, हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं. हम सब कुछ छोड़ के हम लोगों के साथ मिलके हम सोचते हैं, हाँ हम अभी बड़ा बन गया, हम अभी प्लान बना सकते हैं, हमारा आइडियाज चला सकते हैं, हमारा योजनाओं को बना सकते हैं. वी स्टार्ट बिकमिंग इंडिपेंडेंट एंड वी थिंक दैट वी आर गुड इनफ टू गो फॉरवर्ड. ऐसा ही हुआ था मोसेस के लाइफ में. व्हेन मोसेस वाज गुड, ही बिकेम अ वॉरियर काइंड ऑफ अ बिल्ट मैन. उन्होंने सोचा अभी मैं जाके करूंगा. हम इसके बारे में मनन कर चुके हैं. He went and he killed one Egyptian when that Egyptian was doing wrong to an Israelite. Next day he went to settle the dispute between two Israelites. दो इस्राएली भाइयों के बीच का एक लड़ाई को सेटल करने के लिए गया. उन्होंने पूछा, तू कौन है भाई? Who are you to come between us?
कल आपने वो मिस्री को मारा, वैसे हमें मारने के लिए सोच रहा है क्या? भागना पड़ा वहां से। बट दैट्स द थिंग, यू नो, इट हैपेंस इन आवर लाइफ। व्हेन वी आर हेल्पलेस, गॉड हेल्प्स अस। मूसा के समय में भी यही हुआ था। व्हेन ही वाज अ हेल्पलेस बेबी, God brought in the little services of his mother and sister and Pharaoh's daughter. That's very beautiful, ना? माँ ठीक है, बहन ठीक है, बट उनको कौन बड़ा करके लेके आया? Pharaoh's daughter. The same people against whom Moses is going to revolt, या Moses is going to rebel, या Moses is going to stand against them. उन्हीं का घर का एक स्त्री के द्वारा मोसेस बड़ा हुआ, वहां का हर चीजों को सीखा, एक आदमी बना। Now when he is on his own, he started thinking on his own, he started doing on his own. परमेश्वर को उनको वहां से लेके जाना पड़ा। He ran away from there. हमें अच्छे से पता है, वहां जाके दूसरे जगह जाके वहां शादी हुआ, फिर वहां क्या कर रहा था? कुछ भी नहीं। वहां he was just being a small shepherd, taking care of the sheep of his father-in-law. कुछ समय निकल गया था। And when he came to a position of no person in his life, God brought him back. जब परमेश्वर उनके हाथ में क्या लेके वापस आया मालूम है? परमेश्वर ने बोला, बाइबल आगे जाके आप पढ़ो, God told, आपके हाथ में आपका लाठी लेके आप जा, और कुछ नहीं। इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए आपको तलवार की जरूरत नहीं है, आपको बहुत बड़ा राजा बन के, अपना स्ट्रेंथ बन के, आपका आर्मर बड़ा बना के, आपको एक हॉर्स लेके जाने का जरूरत नहीं है। टेक द शेपर्ड स्टाफ दैट इज इन योर हैंड एंड गो। वो है हमारा परमेश्वर। ही कैन डू ग्रेट थिंग्स। हमारा मेन इश्यू ये है कि वी आर नॉट एबल टू सी द इनविजिबल हैंड ऑफ गॉड वर्किंग इन आवर लाइफ। परमेश्वर का जो हाथ हमारे जीवन में काम करता है, वो हम देख नहीं पा रहे हैं। जब हम वीक थे, हमें थामे रखते हुए, हमें हमारा पैरों को ठोकर खाने से बचाने वाला वो हाथ को हम देख नहीं पा रहे हैं, हम स्मरण नहीं कर पा रहे हैं। वी आर नॉट एबल टू फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड्स हैंड सपोर्टिंग अस एंड टेकिंग अस फॉरवर्ड। माय डियर फ्रेंड्स, पॉल इसको ऐसा बोलता है, व्हेन आई एम वीक देन आई एम स्ट्रॉन्ग। जब मैं बलहीन हूं, जब मैं बलवान है। क्यों? बिकॉज हिज ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर मी। जब मैं वीक हूं, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में इतना बड़ा हो जाता है कि वो मुझे थामे रखता है। You know, I was seeing these two aspects and I was glorifying Lord. God uses small people with their small ideas to bring in, to execute God's great ideas. And you and me are a part of that. बहुत सारे लोगों के जीवन में हम सोच रहे होंगे, इनके लिए ये छोटा, ये करने से क्या होने वाला है? आई एम जस्ट हेल्पिंग अ स्मॉल किड। ये यहां भी इतना ही हुआ था, एक बच्चे को जिंदा रखने के लिए कोशिश किया, बस इतना ही है। बट वो बहुत जरूरी था, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं, मोसेस था। आज आप एक बच्चे के जीवन में जो कर रहे हैं, आज आपके फ्रेंड के जीवन में, या आपके सिस्टर के जीवन में, आपके बहन के जीवन में, आपके दोस्त के जीवन में, आपसे बहुत छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के जीवन में आप कुछ हेल्प कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, या उनको वॉट एवर हेल्प यू आर डूइंग इन द लाइफ, यू डोंट नो हाउ इट विल कम थ्रू। God's invisible hand is working through you to bring them to greater heights. So let's be ready to do whatever we can do in our own levels. हमारे लेवल पे जो छोटा काम हम किसी और के जीवन में जो हम कर सकते हैं, वो करने का कोशिश करें, क्योंकि उनके द्वारा परमेश्वर का बड़ा योजना हो सकता है। हमें आज दिखेगा नहीं, आज समझ में नहीं आएगा, बट एक दिन हम वो देखेंगे। दूसरा हमने देखा, when we are helpless, God helps us. But when we grow up, we think that we can be on our own. ये मेंटालिटी हमें चेंज करना पड़ेगा। Let us again be that helpless child crying so that we can see God's hand in our life. मैं यही सोच रहा था, न्यू टेस्टामेंट में जब यीशु मसीह एक बार बोलता है, ये छोटा बच्चों को बीच में खड़ा करके बोलते हैं, you should try become like this small child so that you can enter heaven. इस छोटे बच्चों जैसे आपको बनना पड़ेगा, तभी आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। मैं सोच रहा था, मे बी गॉड इज टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ अ कैरेक्टर, where a child is helpless. A child is always helpless. He or she needs the help of some elder. कोई बड़ों का मदद उनके जीवन में हमेशा चाहिए।
और बच्चे भी हमेशा यही बोलते हैं, उनके पास पैसे नहीं है बट पापा को फोन करके क्या बोलते हैं, पापा आते वक्त ये लेके आना। बस उनको पता नहीं है पापा के पास पैसा है क्या, पापा लेके आ सकते हैं क्या, पापा सिर दर्द के साथ आ रहे हैं क्या, वो कुछ भी नहीं सोचते हैं। बस इतना बोलते हैं, डैडी मुझे आज चॉकलेट चाहिए, आप आते वक्त लेके आना। बस इतनी सी बात। यू आर कंप्लीटली डिपेंडेंट एंड यू आर कंप्लीटली इनोसेंटली आस्किंग योर डैड फॉर व्हाट ऑल यू नीड। दैट्स व्हाट गॉड एक्सपेक्ट्स। हम वापस वो बच्चे बन जाते हैं। लेट्स कीप आवर विजडम, लेट्स कीप आवर अक्वेंटेंसेस। हम जो भी लेके रखें वो सब हम हटा के रखें, परमेश्वर के सम्मुख में वापस वो बच्चा बन जाए हम। लेट्स बिकम दैट चाइल्ड वंस अगेन, where we can just go to him and keep on blabbering, saying daddy मुझे ये चाहिए, daddy मुझे वो चाहिए, daddy मुझे ये करके दो, वो करके दो, with all our innocence, putting all our wisdom aside. Let's come to him because he is there to help us in a big way. As I was reading this, I was really encouraged. As I told you, there were twofold things I could see. One, the things that you can do in the life of others. Second, the thing that you can be in the presence of the Lord. दो चीज हमने आज सीखा है. Shall we close our eyes? I want you all to close your eyes. You can be an instrument in the God's hand in shaping the life of many historians. या many people who could write history. आपके जीवन के द्वारा बहुत सारे लोगों को आप इतिहास बनाने वाला या इतिहास लिखने वाला लोग आप बना सकते हैं. उसका एक पार्ट you can be. If you can do whatever you can in your own ideas. ज्यादा सोचना नहीं, कुछ भी करते वक्त ऐसा नहीं सोचना हाँ इनमें से मोसेस निकलेगा, ये निकलेगा. नहीं, आप जो कर सकते हैं किसी और के लाइफ में वो करो, बस छोड़ दो, क्योंकि उसके द्वारा उस छोटे छोटे कार्यों को पीछे काम करने वाला एक परमेश्वर का बहुत बड़ा काम है या हाथ है. और हमारे जीवन में हम हमारे विस्डम, हमारे अंडरस्टैंडिंग, हमारे नो हाउस, हाउ टू डूज, DIYs सब कुछ हटा के रखें और परमेश्वर के सम्मुख वापस वो हेल्पलेस बच्चा बन जाएं, ताकि परमेश्वर का सहायता हमारे जीवन में हमेशा हमेशा रहे. Let's pray. Loving Heavenly Father, thank you for this beautiful day that you've given us, Lord. आज फिर से हम सब साथ मिलने के लिए और इस रीति से इस यूथ मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए आपने अनुग्रह दिया. हम आपको धन्यवाद देते हैं. Lord, we pray that whatever words that we heard today will work in our life, Master. परमेश्वर, हमारा सोच बहुत छोटा है, हमारा हाथ छोटा है, हमारा कार्य छोटा है, but through this small petty things you can bring blessings in the life of many people. You can make history makers, Master. हम चाहते हैं कि हम हमारे जीवन से किसी का लाइफ में कुछ भी हम कर सकते हैं, बोल सकते हैं, छोटा चीजें वो करने के लिए हमें मदद करना. Let us not be lazy, or let us not think that मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मेरा इसमें क्या रोल है. Let's not be thinking too much. Let's just do whatever small things that we can do in the life of others. और हमारे जीवन में हम सोच के देख रहे हैं परमेश्वर, whenever we were helpless, you were always there to help us. Whenever we were crying, you were always there to wipe out our tears, Master. But हम आगे बढ़ते, हम बहुत बड़े बन गया. We have become so big in our own eyes, Master. But आज हम वापस आ रहे हैं आपके सम्मुख में और हम पूछ रहे हैं कि परमेश्वर हमें अनुग्रह दे कि आपके सम्मुख में हमेशा वो छोटा बच्चे जैसे रहने दो, आपके ऊपर डिपेंड करते हुए, आपके ऊपर हमेशा हमारा आंखों को रखते हुए, आपके पास हर चीज़ के लिए भागते आने के लिए हमें अनुग्रह देना परमेश्वर. Let us be completely dependent on you, because there is a hand of God working in our lives and working in the hands of every people, and that is the blessed hand of our Creator. We thank you for this hand. We thank you and we submit us to the working of this beautiful hand in our life, Master. हम एक बार फिर उस हाथों में हम सौंपते हैं. Thank you, Lord, for this time that you've given us. We pray and submit our lives into your hands once again. Until we meet next time, your grace and mercy be with each and every one of us, Lord. All glory and honor be to your name alone. In Jesus' precious name we pray. Amen. Amen. Thank you. God bless you all. Let's continue in this way until further announcements come. So until we meet next time, the presence of our Lord, the grace and mercy of our Lord be with each and every one of us. Bye-bye.
टेक केयर.